बच्चों, अब हम गिल्लू पाठ का चौथा भाग देखेंगे। देखिए, उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेज़ी से अपने घोंसले में जा बैठता। So, by that time, author met with one accident. So, उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला जाता, at that time, whenever the door of this room was opened, Gillu felt that or maybe author is coming inside. But whenever he used to see someone else who was entering in that room, Gillu was going back to his nest. अब उसे काजू दे आते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले। So at that time he was getting cashew nuts because it was Gillu's favorite food. So people were there in Mahadev Verma's home to give food to Gillu. So he was getting cashew at that time when author was not in home. She was in hospital. Hospital is hospital because of the motor accident. Then when she came back from hospital and cleaned the place where Gillu used to be, she saw that उसमें काजू भरे मिले. So she saw that so many cashew nuts were there in that nest, जिनसे ज्ञात होता कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा. So from this she could understand that Gillu was not able to eat at that time when author was there in hospital. That much close relationship they had. मेरी अव्यवस्था में वह तकिए पर मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता. So when अस्वस्थता means illness or when author was not well, तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता. So Gillu was keeping its fingers in author's forehead as well as on head, and it was very slowly. He was doing it very slowly. उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता. So परिचारिका means servant, sevika. So as if Gillu was one sevika for author. In that way he was taking care of author. गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता न अपने झूले में बैठता. So when author used to be in home in summer, Gillu was also not ready to go out. He used to be inside. उसे मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था. वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता. So he was not ready to go out. Was there near author's wherever author used to sit, he used to be near that place. गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती. So गिलहरी's lifetime is not more than 2 years. अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया. So Gillu's lifetime also was going to end, going to get over. दिन भर उसने न कुछ खाया न बाहर गया. So he didn't eat anything for whole day. रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन्न स्थिति में पकड़ा था. So at night उसने कुछ खाया ना पिया ना. So he didn't eat anything, he didn't go out, and it was very much painful at night. So what Gillu did, Gillu came near author's bed and
caught the finger of author, and as Gillu holded author's hand when he was small. पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाकर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया. So hands became very chill, and author woke up and gave some tried to give some heat to it to Gillu's body. परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया. So when it was morning, early morning, then he went to other life to be alive there, means he was dead. उसका झूला उतर उसका झूला उतर कर रख दिया गया है और खिड़की की जाली बंद कर दी गई है, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती है और सोनजुई पर वसंत आता ही रहता है. So his nest was kept aside because no one was there to use that, but outside all the Gilharis used to come to meet Gillu. सोनजुही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई है, इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी. सो गिल्लू वॉज बरीड नियर द सोनजुही ट्री बिकॉज ही लाइक द ट्री वेरी मच. किसी बसंती दिन जूही के पिताव छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है. सो ऑथर फेल्ट दैट मे बी गिल्लू विल बी a flower in Sonjuli, yellow flower in Sonjuli. अब देखिए बच्चों प्रश्नोत्तर. पहला प्रश्न है, सोनजुली में लगी पीली कली को देख लेखिका के मन में कौन से विचार उमड़ने लगे. When author saw the yellow flower in Sonjuli tree, what did she feel? सोनजुली में लगी पीली कली को देखकर लेखिका के मन में लेखिका गिल्लू के बारे में सोच रही थी और सोचने लगी, गिल्लू के बारे में सोचने लगी. पाठ के आधार पर कौवे को एक साथ समादरित और अनादरित प्राणी क्यों कहा गया है. According to the lesson, why we are saying that crow is sometimes we are giving respect to crow and sometimes we are not giving respect to crow. कौवे को हम एक साथ समादरित और अनादरित कहते हैं क्योंकि जब हमें अपने पूर्वजों को खाना देना है तो हम कौवे को बुलाते हैं और कौवे को खाना देते हैं इसी विश्वास के साथ कि हम ये खाना अपने पूर्वजों को दे रहे हैं. और उसी के साथ कौवे अनादरित भी है क्योंकि कौवे का कर्कश आवाज हमें अच्छा नहीं लगता और कौवे को कोई भी पसंद नहीं करता. और समादरित में आप ये भी लिख सकते हैं कि कौवे जब आवाज लगाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे घर में मेहमान आने वाले हैं. गिलहरी के घायल बच्चे का उपचार किस प्रकार किया गया. लेखक गिलहरी के घायल बच्चे को घर के अंदर ले आए और उसका घाव रुई से खून पोंछा और उस घाव पर पेनिसिलिन लगाया. फिर उसके रुई की बत्ती से उसके मुंह में थोड़ा दूध देने की कोशिश की, लेकिन दूध उसके मुंह में नहीं गया. फिर कुछ देर बाद थोड़ा सा पानी उसने पिया था. इस प्रकार गिलहरी के घायल बच्चे का उपचार किया गया. अब देखिए चौथा प्रश्न. लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था. व्हाट गिल्लू यूज्ड टू डू टू टेक द कंसंट्रेशन ऑफ ऑथर. सो लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू पर्दे से सर से एक बार ऊपर जाता था और फिर नीचे आता था. ऐसा वो लगातार करता रहता था जब तक लेखिका जाकर उसे पकड़े और लिफाफे में बंद न कर दे. पांचवा प्रश्न देखिए. गिल्लू को मुक्त करने की आवश्यकता क्यों समझी गई और उसके लिए लेखिका ने क्या उपाय किया. जब वसंत ऋतु में when author felt that गिल्लू should go out.
वसंत ऋतु में जब बाहर गिलहरियाँ चिक चिक करते थे, तब लेखिका को ऐसा लगा, गिल्लू उन लोगों को देखता रहता था। सो लेखिका को लगा कि इसलिए लेखिका को लगा कि गिल्लू को शायद मुक्त करने की आवश्यकता है। तो लेखिका ने क्या किया, लेखिका ने लेखिका ने खिड़की के जाली का एक कोना खोल दिया, ताकि गिल्लू बाहर जा सके और अंदर आ सके। गिल्लू किन अर्थों में परिचारिका की भूमिका निभा रहा था? हाउ गिल्लू वॉज टेकिंग पार्ट ऑफ सेविका, सर्वेंट। जब लेखिका को मोटर दुर्घटना हुई और वो अस्पताल में थी, तब गिल्लू ने खाना पीना छोड़ दिया था। और जब लेखिका घर आए, तब गिल्लू उनके सर के पास बैठा रहता था और उसके उंगलियों से लेखिका के बाल और सिर को सहलाता था। एकदम धीरे धीरे सहलाता था, जैसे कि वो एक परिचारिका है। 7वां प्रश्न देखिए, गिल्लू की किन चेष्टाओं से यह आभास मिलने लगा कि अब उसका अंत समय समीप है? गिल्लू को means by seeing what kind of activities author understood that it was Gillu's life is going to get over, or Gillu is going to die. So when author saw that Gillu was not in its own place in that Khonsla, it came near author and lie down and holded author's hand, how Gillu holded her hand when Gillu was small, and hand was very chill. ऑथर ने उठकर थोड़ा हीटर जलाया और उसको थोड़ी गर्माहट देने की कोशिश की, लेकिन गिल्लू को बचा नहीं सके। 8वां प्रश्न देखिए, प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। सो व्हेन इट वाज अर्ली मॉर्निंग, गिल्लू वॉज नो मोर, और किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। यहाँ सो गया, इस धरती पर सो गया, ताकि वो दूसरे जीवन में जाग सके, कि उसकी मौत हो गई थी। तो इसका अर्थ है मतलब जब प्रभात हुई तब लेखिका ने देखा, तो जब प्रभात हुआ तब लेखिका ने देखा कि गिल्लू की मौत हो गई और वो इस दुनिया से कहीं और जागने के लिए यहाँ सो गया, मतलब उसकी मृत्यु हो गई। अब देखिए 9th क्वेश्चन, सोनजूही की लता के नीचे बनी गिल्लू की समाधि से लेखिका के मन में किस विश्वास का जन्म होता है? सोनजूही की लता के नीचे बनी गिल्लू की समाधि से लेखिका के मन में इस विश्वास का जन्म होता है कि गिल्लू एक ना एक दिन जरूर सोनजूही की पीली कली के रूप में खिल जाएगा, क्योंकि उसे सोनजूही की लता बहुत पसंद थी। इसलिए लेखिका को लगा कि शायद वो सोनजूही की पीली कली के रूप में लेखिका को चौंकाने के लिए आ जाएगा। अब बच्चों देखिए गिल्लू पाठ का माइंड मैप। लेखिका महादेव वर्मा। गिल्लू एक गिलहरी। कौवे के मार से गिल्लू को बचाना, उसके घाव पर मरहम लगाना, उसे दूध पिलाना, गिल्लू की शरारतें, लेखिका के साथ उसका रहना, परिचारिका बनकर लेखिका की सेवा करना, अचानक एक दिन उसकी मृत्यु, सोनजूही की पीली